Good morning, students. Today, I, Abhishek Kumar Gupta, your English teacher, is going to teach you the next remaining portions of the chapter 4, which is Albert Einstein at his school, and your snapshot, a chapter from your book, Snapshot. And yesterday I taught you that how Einstein felt very bad at his school and how he planned to leave the school. And I finished up to the page number 26, and now I will continue from the page number 27. So hope you enjoy the video, and let us start the video without wasting much time. Okay, so at page number 27, I doubt it, said Albert glumly. Means yesterday we saw that Yuri said that you will be student one day. Yuri is saying that you will be student one day, but Albert is saying glumly. Glumly means बहुत उदासी से. Glum means you can say disheartened. I doubt it, said Albert glumly. Albert ने क्या कहा, बहुत उदासी से कहा कि मुझे निराशा है कि मतलब मुझे डाउट है कि मैं एक स्टूडेंट हो पाऊँगा. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. And here Albert is saying that I don't think I will ever pass the school diploma. Okay. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. So here we have another character who is the cousin of Albert Einstein, and whose name is Elsa. Elsa is the cousin of Albert Einstein. Okay. So he told his cousin Elsa the same. So in this sentence we see that Albert shares his ideas that he is not feeling good at his school and all these things with his cousin Elsa when he came to Munich. Munich is a place in Germany. Normally she lived in Berlin, where her father had a business. And Elsa, where did Elsa live? Elsa live in Berlin. Elsa live in Berlin, where her father had a business. I am sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried. Elsa क्या बोलती है कि मैं श्योर हूँ, I am sure if you could learn, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम अच्छे से मतलब लर्न करोगे, if you could carry your studies well, you will pass the exam. You will pass the exam. एग्जाम तुम पास कर जाओगे. She said, उसने कहा, किसने कहा? एल्सा ने कहा. I know lots of boys who are much more stupid than you are. So here is a comparison. अक्सर क्लासेस में हम देखते हैं लोग कंपेयर करते हैं कि यदि वो ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. इफ़ ही कैन डू सो देन आई कैन ऑल्सो. सी सेड आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर. ओके. हु गेट थ्रू मीन्स जो पास हो जाते हैं. मीन्स गेट थ्रू मीन्स टू कम थ्रू. किसी भी चीज़ से होकर गुजर जाना, या उससे मतलब उस परिस्थिति से आप जब क्रॉस कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं टू गेट थ्रू. हु गेट थ्रू. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. They say you don't have to know anything. Again, Elsa is saying that they say means the school system, those students who pass anyhow or who get through, they say that you don't have to know anything. आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. You don't have to understand what you are taught. आपको ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है. What you are taught, आपको क्या पढ़ाया जाता है. Okay, just be able to repeat it in the examination. In the exams, just be able to repeat it in the exams. जैसा आपको कहा गया है, जैसा पढ़ाया गया है, आप एग्जाम में एग्जैक्टली वैसा ही रिपीट कर दीजिए. सो रोट लर्निंग. yesterday I talked about the method of rote learning which NCERT does not support, which CBSE does not support, and it's the aim of our it should be the aim of our education system that rote learning should not be promoted. Further, we should promote our students, our children to learn them by themselves and encourage themselves for learning. So here there is a contrasting idea which Elsa has. Elsa क्या बोलती है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं. सो वो जो मिस्टर ब्राउन की बात कर, मिस्टर ब्राउन के आइडियाज़ को सपोर्ट करती है. सो इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है कि आप बस एग्ज़ाम पास कर जाइए जैसे भी हो, और आपको मतलब उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप लर्न करिए एंड एज इट इज़ इसको एग्जामिनेशन कॉपी में आप इसको उतार दीजिए. सो दिस इज़ द प्रोसेस विच आइंस्टीन हेट्स. एंड
you can see that Einstein does not support this kind of thing. That is the whole trouble. See, in the next statement we have the proof that Einstein hates these things, that is the rote learning. That is the whole trouble, said Albert. Albert क्या बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि यही तो समस्या है. This is the problem, this is the trouble. I am no good at learning things by heart. I am no good learning things by heart. मतलब मैं कोई भी चीज़ मैं याद नहीं कर सकता, मैं रट नहीं सकता. ओके, बाई हार्ट. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. अगेन एल्सा इज सेइंग कि तुमको उस पर भी गुड होने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. आपको इस पर भी गुड होने की ज़रूरत नहीं है. एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरेट. सो यार पैरेट का सिंबल है जो रोट लर्निंग को सपोर्ट करता है. रोट लर्निंग मीन्स जहाँ पे केवल आप चीज़ों को लर्न कर लेते हैं एंड यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इसेंस ऑफ द थिंग्स विच यू आर लर्निंग. ओके, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते, आप उसका एंजॉय नहीं करते कि आप हाँ जो पढ़ रहे हैं मैं उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ कि नहीं. हेयर एल्सा इज सेइंग एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरेट. जैसे पैरेट क्या होता है, इसको जो भी हम सिखाते हैं ही लर्न्स इट एंड ही रिपीट्स इट विथ यू. आफ्टर यू कैन से ही रिपीट्स इट आफ्टर यू. व्हेन यू से अ पैरेट, लाइक हम लोग अपने घर में तोते, जब कभी आप देखे होंगे कई लोगों ने तोते पाले हैं, तो जैसे उसको सिखाया जाता है वो वैसा ही बोलता है. सो एल्सा इज सपोर्टिंग दैट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम. यू जस्ट डोंट ट्राई. इवन सी इज सेइंग दैट डोंट जस्ट ट्राई एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म. ओके, तो बोलती है कि मैं तो देखती हूँ कि अगर तुमको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, रोट लर्निंग तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो फिर भी मैं तुम्हें देखती रहती हूँ. देयर इज अ बुक अंडर योर आर्म. विथ यू देयर इज अ बुक अंडर योर आर्म. हमेशा तुम्हारे बाह में, मतलब तुम्हारे हाथ में एक किताब ही रहती है. एडेड एल्सा. एल्सा ने कहा व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग. क्या पढ़ रहे हो तुम, वो कौन सी बुक है जो तुम पढ़ रहे हो, विच यू आर कैरिंग विथ योर सेल्फ. अ बुक ऑन जियोलॉजी. ओके, सो this is a book on geology. What is geology? Geology is the subject which is the study of minerals under the earth. हिंदी में इसको बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान. मेनली अर्थ के क्रस्ट में क्या है, व्हाट इज अंडर द अर्थ्स क्रस्ट, दिस कम्स अंडर द डोमेन ऑफ जियोलॉजी. जैसे हमारे पास फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है. बायोलॉजी में हम जनरली एनिमल्स किंगडम का अध्ययन करते हैं, प्लांट किंगडम का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं. ओके, उसी तरह जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, अर्थ की संरचना क्या है, हमारा जो पृथ्वी है उसकी संरचना क्या है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है जिस फील्ड में होता है उसे हम जियोलॉजी बोलते हैं. ओके, जियोलॉजी. देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट. ओके, सो हियर इज ए क्लू व्हाट जियोलॉजी इज. एल्सा क्या बोलती है कि जियोलॉजी, क्या तुम जियोलॉजी पढ़ते हो. रॉक्स एंड थिंग्स मतलब पत्थरों के बारे में, रॉक्स पहाड़ों के बारे में, पत्थर के बारे में. ओके, अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ का जो इनर स्ट्रक्चर है जियोलॉजी उससे डील करता है. ओके, डू यू लर्न दैट, क्या तुम वो पढ़ते हो. नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. तो एल्बर्ट क्या जवाब देते हैं कि वी हैव हार्डली का यूज करते हैं जब कोई चीज़ बहुत रेयर होता है. ओके, वी हैव हार्डली एनी, नहीं के बराबर का सेंस देता है हार्डली. वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. ओके, हमारे स्कूल में मतलब साइंस न के बराबर है, साइंस नहीं पढ़ाया जाता है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट. तब तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो. जब तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है तब तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट इफ इट इज़ नॉट इन द सिलेबस देन वाई वी आर लर्निंग इट, वाई वी आर कैरिंग इट विथ आवर सेल्फ. सो it doesn't matter. Some students love reading other things, so this should be promoted. And Einstein loves reading science, and as we know that he was a very famous scientist. Later he became physicist, and later his theories totally transformed the world. Theory of relativity and all those things which I have told you in the previous classes. Okay, so Elsa says that if science is not a prominent subject in your school, if science is not there, then why are you reading it, why are you continuing it. Okay, because I like it. So here is the matter, main matter. I like it. मैं इसे पसंद करता हूँ. And isn't that a good enough reason? So here is a question tag. Isn't it? We use जब हम किसी को influence करना होता है, अपनी बातों को बताना होता है कि क्या ऐसा नहीं है क्या. Okay, then we use isn't it. Isn't that a good enough reason? Isn't that a good enough reason? क्या ये एक मतलब एक गुड रीज़न नहीं है, एक अच्छा कारण नहीं है, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ इसलिए मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये पढ़ना, मतलब साइंस पढ़ना, मुझे जियोलॉजी पढ़ना, इन सब चीज़ों को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है.
एल्सा साइड, एल्सा ने आह भरी, साई मतलब आह भरना, साई आह भरना, जब हम कभी आह भरते हैं आहे भरना। एल्सा साइड, यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, अल्बर्ट बेशक तुम सही हो, ऑफ कोर्स बेशक, ऑफ कोर्स तुम सही हो। सी सैड, एल्सा बोलती है, बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। लेकिन देखो फिर वही बात कि जो सब्जेक्ट जो चीज़ें कोर्स में नहीं है वो आपको कैसे हेल्प करेंगी, तो आप उसे क्यों पढ़ रहे हैं, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा, तो आपको डिप्लोमा एग्जाम पास करने में इट वॉन्ट हेल्प यू, means reading geology it won't help you clearing your examinations because geology is not there at Albert's school. So Elsa is saying that if you are reading geology it won't help you getting it won't help you in your examination. Okay students, got it? Apart from books on science his only comfort was music. Apart, so here we have also we come to know that Einstein loves music. Einstein has a hobby and his hobby was means playing music. Okay, apart from books, apart from means books के अलावा, when we use apart from books के अलावा, books के मतलब उसके इतर, science his on science, apart from books on science his only comfort was music. अगर आइंस्टीन को किसी चीज़ में राहत मिलती थी, क्योंकि स्कूल में तो उनको अच्छा लगता नहीं था, और जो चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी, मेनली साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी, एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ ए साइंस एज वी नो, लेटर ही बिकम ए फिजिसिस्ट। लेकिन इसके मतलब अपार्ट, इसके अगर इतर कहें कोई चीज़ें उनको अच्छी लगती थी, दैट वाज म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो वायलिन रेगुलरली वायलिन बजाते थे जब तक कि वो लैंड लेडी, जिसकी लैंड लेडी कौन है, जिसके घर में वो रहते थे, लॉजिक्स मैंने कल बताया था इसके बारे में, तो वो तब तक बजाते रहते थे जब तक वो उनकी लैंड लेडी उनको स्टॉप करने के लिए नहीं बोलती थी कि आप इसे मत बजाइए। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स। ओके, लैंड लेडी क्या बोलती थी, दैट वेलिंग्स गेट्स ऑन माई नर्व्स। यहाँ एक फ्रेज है, इसका मतलब ये है कि वो जो वायलिन की आवाज़ है वो उसे वेल मतलब होता है रोना, या जैसे कोई ऐसी वॉइस जिसमें आदमी रोता है उसको वेल करते हैं, विलाप करना जिसको हिंदी बोलते हैं, टू वीप। सो दैट वीपिंग साउंड, सो वायलिन को कंपेयर करें वीपिंग साउंड, जैसे जब कोई रोता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है वो साउंड। सो वायलिन जब वो बजाते थे आइंस्टीन, तो वो लैंड लेडी को क्या लगता था, दैट the violin's voice is like a wailing voice, a weeping voice. So she tried to stop Einstein to play the violin. Okay, तो वो वायलिन उन्हें बजाने नहीं देती थी, वो उन्हें स्टॉप कर देती थी. Okay, there is and she said there is enough noise in the house with all the kids howling. सो अभी अर्लियर जब हमने पढ़ा था नेक्स्ट पेज पे, तो वो जो जहाँ लॉज में रहते थे वहाँ वो लैंड लेडी अपने बच्चों को हमेशा मीन्स पीटती रहती थी, उसका पति आता था फिर उसको मारता था। सो देर इज ए कोमोशन मीन्स शोरगुल हमेशा होता था, देर इज ए नॉइज, द इन्वायरमेंट इज़ वेरी यू कैन से डर्टी एंड इट्स फुल ऑफ नॉइज, इट्स फुल ऑफ वायलेंस, इट्स फुल ऑफ यू कैन से स्क्वेलर एंड इट्स डर्टी. ओके, सो देर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हाउलिंग. तो वो लैंड लेडी क्या बोलती है कि म्यूजिक भी उसको, वायलिन का जो म्यूजिक है एक तो उसको वीपिंग साउंड की तरह लग रहा है, और दूसरा वो क्या बोलती है कि जो बच्चे हैं वो घर में वैसे ही शोर मचाते हैं, हाउलिंग करते रहते हैं, मतलब चिल्लाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, और ऊपर से तुम वायलिन बजा रहे हो. सो प्लीज़ स्टॉप इट. सो हेयर वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड लेडी. लैंड लेडी कैसी है हम उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं. इन एवरी स्टोरी वी हैव कैरेक्टर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी नॉवेल्स में कैरेक्टर्स वी कैन से द पर्सन्स जो होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, और उनकी सम पर्सनैलिटी होती है. सो पर्सन, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वो कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन्स वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनके एटीट्यूड क्या हैं. सो वी ऑल नो दीज थिंग्स थ्रू द स्टेटमेंट्स गिवन इन द स्टोरी इटसेल्फ. और ये हमें कैसे जानते हैं, उनके एक्शन से, उनके डायलॉग से हम उस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि कोई कैरेक्टर क्या सोचता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है. ये हम उसके डायलॉग्स के थ्रू वर्ड्स में जानते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ तो हम सामने देख नहीं रहे हैं, स्टोरी में हम पढ़ रहे हैं. तो लैंड लेडी का कैरेक्टर यहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं. वी कैन ट्रेस द कैरेक्टर ऑफ लैंड लेडी विद दीज स्टेटमेंट दैट शी इज़ नॉट लविंग द म्यूजिक, इवन द वॉइस ऑफ द वायलिन सीम्स लाइक वीपिंग साउंड. जैसे लग रहा है कोई रो रहा है, उसको ऐसा सुनाई दे रहा है. सो वी कैन एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ द लैंड लेडी. Okay, moving to the next paragraph. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. तो अल्बर्ट क्या है, अल्बर्ट was tempted. Tempted मतलब होता है जैसे
उनको ऐसा मतलब मन तो आता था कि टेम्पटेड मतलब तो होता है ऐसे ललचाना, ललचना, लेकिन यहाँ सेंस ये है, अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू से, जब हमें कोई डांटता है तो कभी कभी जब उसकी गलती होती है तो हम मन करता है कि उसको रिप्लाई करें, तो अल्बर्ट को ये मन में आता था कि मैं भी रिप्लाई करूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर द पर्सन हु मेड देम हाउल, देम चिल्ड्रेन को, जो चिल्ड्रेन हाउल करते रहते हैं, मतलब दे शोर शराबा मचाते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, तो वो लैंड लेडी की वजह से है, क्योंकि लैंड लेडी हमेशा बच्चों को पीटती रहती थी, उनके ऊपर चिल्लाती थी, उनके ऊपर एंग्री होती थी, गुस्सा करती थी. सो दैट्स वाई यू आर द पर्सन. सो अल्बर्ट थॉट दीज थिंग्स इन हिज माइंड. ही इज नॉट सेइंग दीज थिंग्स ओपनली. ओके, ओपनली नहीं बोल रहा है, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. लेकिन अल्बर्ट ने ये सोचा कि नहीं, ये कहना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज सी इज द लैंड लेडी. ओके, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी. अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है. आफ्टर 6 months alone in Munich, he told Yuri after 6 months alone in Munich. आफ्टर 6 months मतलब ऐसा 6 महीने अब बीत चुके हैं. ओके, इन सब चीज़ों के बाद 6 महीने बीत चुके हैं, और 6 महीने बाद आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 6 months आइंस्टीन इज सेइंग टू हिज फ्रेंड दैट आई मस्ट लीव दिस प्लेस, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम म्यूनिक. इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. इट इज़ वेरी एब्सर्ड. एब्सर्ड मीन्स बहुत ही विचित्र बात है, और मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं ऐसे ही चीज़ें चलती रहें. आई शुड गो ऑन लाइक दिस. गो ऑन लाइक दिस मीन्स टू कंटिन्यू लाइक दिस. इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम. इन द एंड मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि मैं अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, एंड एवरी वंस टाइम, और सबका समय भी बर्बाद कर रहा हूँ. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, एंड इट वुड बी बेटर इफ़ आई स्टॉप नाउ. और सबके लिए यही बेहतर होगा कि मैं इसे यहीं सब ख़त्म करूँ, मतलब मैं अपना स्कूल यहाँ से क्विट करूँ. एंड देन व्हाट विल यू डू? और तब तुम क्या करोगे? यूरी आस्क्ड. यूरी क्या बोलता है कि उसके बाद तुम क्या करोगे? अगर स्कूल तुम छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? आई डोंट नो. इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. इफ़ आई गो टू मिलान, मिलान इज़ द इटली का एक शहर है मिलान. इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड, मैं अफ्रेड हूँ, मुझे ये डर है, दैट माई फादर विल सेंड मी बैक, फिर मुझे भेज देंगे. अनलेस के बाद डॉट डॉट डॉट, यानी उनके दिमाग में कुछ आइडिया है. क्या आइडिया है? हिज आइज ग्लीम्ड विथ अ सडन आइडिया. ग्लीम मीन्स आंखें चमक जाना. जैसे कहने का मतलब जब हमको कोई अच्छी चीज़ मिलती है या कोई नया आइडिया आता है किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, आवर आइज ग्लीम. ओके, हमारी आँख ग्लीम मतलब आँखों में एक चमक आ गई. ओके, हिज आइज ग्लीम्ड विथ अ सडन आइडिया. एक आइडिया है, वो आइडिया क्या था? यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? अब देखो यहाँ पे आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या होने वाला है. ओके, यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? क्या तुम ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हो हु इज़ फ्रेंडली विथ यू, हु इज़ फ्रेंड ऑफ यू? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, सॉरी, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली. ओके, यूरी क्या बोलता है, मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड भी हैं. सेड यूरी. डॉक्टर, नो, आई नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. वाई? अब यूरी बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कभी डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन तुम ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहे हो? वाई? तुम ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहे हो? सपोज, सेड अल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. सो हियर यू सी दैट अल्बर्ट आइंस्टीन इज सेइंग दैट सपोज आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. नर्वस ब्रेकडाउन आप समझते हैं कि जैसे कभी जब कोई बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है. मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता चीज़ों के प्रति जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बींग रिस्पॉन्ड करता है. सो दिस इज ए नर्वस ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन मीन्स पूरी तरह से वो कोलैप्स कर जाता है, मतलब हमारा दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करता है, चीज़ों के प्रति रिएक्ट नहीं कर पाता है. सो दिस इज द नर्वस ब्रेकडाउन. नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो जाता है. एंड यू नो द नर्वस सिस्टम इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्रेन हमारा मूल पार्ट है. अगर ब्रेन ही नहीं काम करेगा तो हम कैसे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे या कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में कंटिन्यू कर पाएंगे. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. सपोज करो कि कोई डॉक्टर ये दिखा दे कि ये बच्चा बहुत परेशान है और इसको अगर ये स्कूल जाएगा ऐसा ही कंटिन्यू करेगा तो ये मतलब इट्स बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल, और इस बच्चे के लिए स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है. इट्स बैड फॉर हिम. सपोज करो अगर ऐसा कोई डॉक्टर कह दे तो क्या है, तो आइंस्टीन एक मतलब डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे स्कूल को क्विट करना चाह रहे हैं. वी कैन ट्रेस इट फ्रॉम हेयर. So, moving to the next page, page number 28. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. Yuri क्या बोलता है कि मुझे नहीं लगता है, I can't imagine
आई कांट, मैं ये ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा, क्योंकि वो झूठ बोलेगा। आई मस्ट ट्राई सेड अल्बर्ट टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। ओके, तो वो बोलता है कि मुझे एक ऐसे डॉक्टर, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलते हैं, मुझे एक ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जो नर्व्स में स्पेशलाइजेशन हो, जिसका यहाँ कहने का सेंस है नर्व्स में स्पेशलाइजेशन, यानी जो जो न्यूरोलॉजी का कोई डॉक्टर हो। तो ऐसे डॉक्टर कौन से डॉक्टर्स होते हैं? न्यूरो के डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर जो न्यूरो के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे न्यूरो सर्जन्स होते हैं, यानी जो ब्रेन से डील करते हैं, जो नर्वस सिस्टम से डील करते हैं। ओके, there are plenty of them. Plenty of them is a phrase which means there are a lot of doctors who deals with nerves, means who are neurosurgeons or who are neurologists. Yuri told him, Yuri उसे बताता है कि there are plenty of them, बहुत सारे हैं। He hesitated for a moment and then added, he hesitated for a moment, कुछ समय तक वो हिचकिचाया, and then he added rather reluctantly, reluctantly मतलब बहुत उदासीनता के साथ, not very you can say with very vigor and with very energetic voice, it is not that, it not like that, reluctantly बहुत उदासीनता के साथ, बहुत मतलब उदासीनता के साथ, I will ask some of the students if they know one if you like, मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा यदि वो ऐसा करते हैं तो, मतलब इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो। विल यू? ओह थैंक यू यूरी, अल्बर्ट्स आईज वेयर शाइनिंग, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ओह थैंक यू यूरी, अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, अल्बर्ट्स की आइज जो है वो चमक उठी, मतलब अरे सोल्यूशन मिल गया। वेट अ मोमेंट आई हैवेंट फाउंड वन येट, तो यूरी क्या बोलता है कि अभी वेट करो, अभी ऐसा मुझे कोई मिला नहीं, मतलब ऐसा कोई डॉक्टर मुझे मिला नहीं है जो ये सब चीज़ें कर सके। ओह बट यू विल, तो यहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं आइंस्टीन, ओके लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कर लोगे। एंड इफ़ आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, एंड इफ़ आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, लेकिन यदि मैं ऐसा करता हूँ, इफ़ आई डू, यानी मैं डॉक्टर को अगर मैंने सर्च भी कर लिया कोई ऐसा डॉक्टर जो तुमको रिकमेंड कर सके कि तुम नर्वस सिस्टम तुम्हारा नर्वस सिस्टम ब्रेक हो चुका है एंड यू आर नॉट इन द कंडीशन दैट यू मे गो टू स्कूल, लेकिन मुझे डर है कि वो डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करे, ही इज़ विलिंग टू हेल्प यू, ही विल। सो आइंस्टीन इम्फेसाइज करते हैं कि नहीं वो करेगा। डिक्लेयर्ड अल्बर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया, मीन्स ही सेड वेरी फर्मली दैट नो डॉक्टर विल हेल्प मी, ही विल हैव टू हेल्प मी, सो देयर इज मीन्स ही इज इम्फेसाइजिंग दैट डॉक्टर विल हेल्प मी अल्टीमेटली। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन। अब यहाँ आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे, अगर मैं ऐसे ही स्कूल में कंटिन्यू करता रहा तो एक दिन कंप्लीटली ही मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट बियर दीज थिंग्स। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। तो डॉक्टर आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि ठीक है, चीज़ें गलत ना लगे, चीज़ें डॉक्टर को ये ना लगे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, बहाना बना रहा है, जैसे अमूमन छोटे बच्चे बहाना बनाते हैं कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई हैव ए स्टमक, आई हैव ए हेडेक, सो आई कांट गो टू स्कूल टुडे। तो अगर ऐसा है तो मैं सही में ऐसा कर लेता हूँ, नर्वस ब्रेकडाउन मेरा हो जाएगा, तो डॉक्टर इसको बिलीव कर लेगा। ओके, एंड इन दिस वे इट विल बी ईजियर फॉर द डॉक्टर टू रिकमेंड मी टू नॉट गो टू स्कूल। ओके, ही लाफ्ड मेरीली मतलब काफ़ी ज़ोर से हंसा, मतलब बहुत खुश हो गया इस बात को बोलते हुए, सिंस इट वॉज सेड इन अ जोकिंगली, बहुत जोक के तरीके से कहा गया इसको। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी क्या रिमार्क करता है, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मतलब मैंने कभी तुमको कम उदास होते हुए नहीं देखा है, मतलब अक्सर तुम नर्वस ही रहते हो। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट। यूरी क्या बोलता है, सॉरी, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मतलब लेस नर्वस तो मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं है। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट। अब ये आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अ डे और टू, मतलब कुछ दिन और अगर स्कूल में मैं ऐसा ही रहा तो दैट विल सून पुट दैट राइट, मतलब ये चीज़ें मेरे साथ हो जाएंगी, दैट माई नर्वस सिस्टम विल बी ब्रेक, मीन्स आई विल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। अल्बर्ट अस्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे अस्योर किया, ऐसा उसने सुनिश्चित किया। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. यूरी ने जब उसे अगली बार देखा तो अल्बर्ट आइंस्टीन के स्पिरिट्स लॉस्ट हो चुके थे, मतलब वो बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि वो स्कूल कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। I can't stand it any longer. Here is the statement in which he says, अल्बर्ट आइंस्टीन says, I can't stand it any longer. अब मैं स्कूल नहीं कैरी कर सकता, अब इससे अधिक नहीं कर सकता।
ही सेड आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। अब आइंस्टीन बोलते हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कंप्लीटली नर्वस ब्रेकडाउन मेरा हो जाएगा एंड इट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। मीन्स ये एक फ्रेज है, मतलब कहने का तरीका है, उन बातों को हम कई तरीके से कहते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मेरा कंप्लीटली नर्वस ब्रेकडाउन एक न एक दिन होना ही है। ओके, आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू टुमारो इवनिंग। और एक अब यूरी क्या बोलता है, सॉरी कीप इट अप देन। अब यूरी क्या बोलता है, कीप इट अप, ठीक है ऐसे ही जारी रखो, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। लेकिन उसके बाद यूरी क्या होता है, उसे सरप्राइज़ देता है आइंस्टीन को वो सरप्राइज़ देता है कि आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने एक डॉक्टर खोज लिया है। यू हैव क्वेश्चन मार्क, यू हैव, अच्छा क्या ऐसा हुआ है, क्या तुम्हें कोई डॉक्टर मिला है। अल्बर्ट्स फेस लिट अप। लिट अप मीन्स जनरली लिट अप का यूज होता है जब कोई चीज़ जलती है, जैसे हम लिट अप करते हैं, कैंडल्स लिट अप करते हैं, यू कैन वी हैव लैंटर्न्स, लालटेन होते हैं उनको लिट अप करते हैं। तो मतलब अल्बर्ट्स फेस लिट अप, ये फ्रेज है, इसका मतलब उसका चेहरा खिल गया। ओके, लिट अप। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मैं उससे मिल सकता हूँ, व्हेन कैन आई सी हिम, व्हेन कैन आई सी द डॉक्टर। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। तो अपॉइंटमेंट कब है, टुमारो इवनिंग है। यूरी सेड हेयर इज़ द एड्रेस। और यूरी क्या बोलता है, हेयर इज़ द एड्रेस, कल शाम को तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। ओके, डॉक्टर अर्नस्ट वेल। तो डॉक्टर का नाम क्या है, अर्नस्ट वेल। अर्नस्ट वेल, देयर इज अनदर कैरेक्टर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर, अर्नस्ट वेल। इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट फिर श्योर होने के लिए पूछते हैं कि क्या वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, क्या इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, मीन्स इज ही ए न्यूरोलॉजिस्ट, इज ही मीन्स इज ही ए डॉक्टर हु डील्स विद द नर्वस सिस्टम। नॉट एग्जैक्टली, यूरी क्या बोलता है कि नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक। सो अभी वो क्या बोलता है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब रियल बात तो ये है कि उसने लास्ट वीक ही डॉक्टर के लिए क्वालिफाई किया, मतलब उसकी डिग्री एकदम नई है। ओके, यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। सो तुम उसके पहले पेशेंट हो सकते हो, ये भी हो सकता है कि तुम उसके पहले पेशेंट हो सकते हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट, क्या तुम इसे स्टूडेंट के तौर पे जानते हो, मतलब क्या वो तुम्हारा दोस्त है। आई हैव नोन अर्न्स्ट फॉर ईयर्स। तो यूरी क्या करता है, यूरी एडमिट्स दैट यस आई नो हिम फॉर ईयर्स। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ही इज़ नॉट अ फूल एंड यूरी हेजिटेट्स, ही वॉन्ट्स हिम दैट ही इज़ नॉट ए फूल। ही वॉन्ट अल्बर्ट। अल्बर्ट को क्या बताता है कि वो कोई फूल नहीं है, कि तुम जिस तरह चाहो उस तरह तुम उसे बोल दो कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप ऐसा ऐसा कर दीजिए। तो वो ऐसा फूल नहीं है, वो डॉक्टर है, ऐसा नहीं। भले उसने अभी न्यूली ही हैज़ ज्वाइंड हिज मीन्स मेडिसिनल प्रैक्टिसेस very recently, but he is a very qualified doctor. What do you mean? आइंस्टीन बोलते हैं what do you mean? Don't try to pull the wool over his eyes. So here is a means idiom. Idiom आपको पता होगा idioms क्या होते हैं. Idioms are the expressions which are very difficult to decode sometimes. जैसे हमारे मतलब जिसको हम हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं, लोकोक्तियाँ जो लोक में प्रचलित होती हैं, और उसको अगर लिटरल हम ट्रांसलेशन करें, लिटरल अगर उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज़ अ डिफरेंट मीनिंग देन रिटन। ओके, सो वी हैव डोंट ट्राई टू डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज। डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर द आइज, यहाँ सेंस क्या है, इसका मतलब डोंट ट्राई टू डिसीव हिम, डोंट ट्राई टू टीच, डोंट ट्राई टू चीट हिम, डोंट ट्राई टू चीट द डॉक्टर, don't try to tell a lie to him. Okay, that's all. Be frank with him, but don't pretend you have got what you have not. But don't pretend what you have got what you have not. तो ऐसा प्रिटेंड मत करना जो तुम्हारे पास, मतलब तुमको वो नर्वस ब्रेकडाउन तो तुम्हारा हुआ नहीं है, तो ऐसा प्रिटेंड भी मत करना। ओके, फ्रैंक होना, पूरी तरह सही तरीके से बताना। एंड नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि तुम किसी को धोखा दोगे। यूरी एडेड, यूरी ऐसा बताता है, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। तो यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री है बैड का, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे खराब झूठे, मतलब कहने को तुम्हें झूठ बोलना तो बिल्कुल भी नहीं आता, तुम दुनिया के सबसे खराब झूठे आदमी हो, मतलब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, सॉरी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अल्बर्ट, अब उसे डॉक्टर की मीटिंग है तो अब ये सोच रहा है कि मैं क्या बताऊँगा उनको। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब उसको समय आया कि भाई अब क्या बोले, डॉक्टर से क्या बताएं, क्या बहाना बनाएं, so when the time arrived for his appointment,
ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, बहुत नर्वस थे कि डॉक्टर से क्या बोलें, क्योंकि उनको तो झूठ ही बोलना था। एंड लेकिन ये भी बात थी कि वो स्कूल कंटिन्यू करना नहीं चाहते थे और उनको वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगैन। अब आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब माई सिचुएशन एंड आई एम नॉट एबल टू टेल यू दैट व्हाट आई एम फीलिंग, डोंट ट्राई। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ठीक है, कोशिश भी मत करो। said the young doctor with a friendly smile. So doctor is very friendly. Here you can see the characteristics of the doctor. He is very friendly. Yuri has already given me a history of the case. Yuri has already given me the history of case. Yuri ने मुझे सारी चीज़ें बता दी हैं. Your friend Yuri, which is also a friend of mine, has already told me the whole situation. सारी situation पहले ही डॉक्टर को बता दी गई है. ओके, जब तक पेशेंट जाए और डॉक्टर को बताए कि मुझे क्या हुआ है, तो डॉक्टर को उससे पहले ही सभी चीज़ें पता हो गई हैं. ओह व्हाट डिड ही से, तो आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि अच्छा क्या कहा उसने, ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, टू गो बैक दैट स्कूल। तो सारी चीज़ें आइंस्टीन के दोस्त यूरी ने डॉक्टर को पहले ही बता दिया है कि आइंस्टीन को जो है लगता है कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा यदि वो स्कूल कंटिन्यू करता रहा। ओह डियर अल्बर्ट्स फेस फेल, सो अगेन वी हैव द फ्रेज अल्बर्ट फेस फेल, अल्बर्ट का फेस गिर जाता है, मतलब चेहरा उतर जाना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अल्बर्ट फेस फेल, चेहरा उतर जाना। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, उसे वैसा नहीं कहना चाहिए था। ओके, ऐसा नहीं कहना चाहिए था यूरी को, मतलब आइंस्टीन बोलते हैं डॉक्टर से कि यूरी को ऐसा नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, क्यों नहीं, इजेंट इट ट्रू, क्या ये सही नहीं है, इजेंट इट ट्रू, देन अगेन ए क्वेश्चन ट्रैक, क्या ये बात सही नहीं है, मतलब ये बात सही है। येस दैट्स द ट्रबल, नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। तो आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि जब सारी चीज़ें आपको पता ही चली गई हैं, यू नो ऑल दीज थिंग्स, देन यू विल रिकमेंड मी टू गो टू द स्कूल एंड यू विल नॉट रिकमेंड मी टू लीव द स्कूल। ओके, सो आइंस्टीन इज हियर फियर्ड, don't be too sure of that. So the doctor is very much liberal, he is very much frank with the Einstein, he knows the condition of Einstein and he wants to help him. Okay, he wants to help him. Yes, that's don't be too sure of that. वो बोलता है कि ठीक है, इतना श्योर होने की भी जरूरत नहीं कि मैं ये सब कहने वाला हूँ। said the doctor, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। अब डॉक्टर भी उसको एडमिट करता है, आइंस्टीन का समर्थन करता है कि मैं श्योर हूँ, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर, मतलब आई एम क्वाइट श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। तुम इस स्कूल के बारे में मतलब तुम नर्वस हो, तुम वहाँ नहीं जाना चाहते। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट। अब अल्बर्ट क्या बोलते हैं, मैं ये सब चीज़ें तो आपको नहीं बताई थी। हाउ कैन यू नो दैट, आप ये सब चीज़ें कैसे जान गए? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज